باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابی رولز کی 18 شقوں میں تبدیلی کی منظوری دے دی ہے۔ ترمیم شدہ رولز پر اعتراضات 7 اکتوبر تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ترمیم شدہ رولز پر 5 نئے فارم بھی جمع کر دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے اخراجات کے لیے بینک اکاؤنٹ سے متعلق رولز میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ ترمیم کے تحت امیدوار کو انتخابی اخراجات کے لیے الگ بینک اکاؤنٹ کھولنا ہوگا۔ الیکشن میں حصہ لینے والے امیدوار کا مشترکہ اکاؤنٹ قابل قبول نہیں۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیے کے مطابق عام انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں کروا دیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کی تجویز کے مطابق آر او مسترد شدہ ووٹ کو امیدوار اور الیکشن ایجنٹ کی موجودگی میں کھولے گا۔ آر او عبوری اور حتمی نتیجے کو فارم 47، 48 اور 49 پر خود تیار کر کے سیل کرے گا۔ تجویز کے مطابق کاغذات نامزدگی کے ساتھ جمع رقم ناقابل واپسی ہوگی جو حکومتی خزانے میں جمع کرائی جائے گی۔ امیدوار کے انتخابی نشان کے ساتھ فہرست ویب سائٹ پر بھی آویزاں کی جائے گی۔ امیدوار آر او کو الیکشن اخراجات کے ساتھ مہم کی فائنانسنگ کی تفصیلات بھی دے گا۔ کسی اور شخص کو الیکشن اخراجات کے کرنے کی اجازت دینے پر امیدوار اس کا بھی تمام تر ریکارڈ دے گا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق فائنانسنگ کرنے والے کا شناختی کارڈ، اخراجات کے اقسام اور آمدن کے ذرائع بھی دیے جائیں گے۔ الیکشن اخراجات کے 2 نئے فارم 47 اور 68 کے شامل کیے جائیں گے۔ امیدوار کے ملک میں بیرون ملک غیر منقولہ پراپرٹی اور خریدے گئے اثاثے کی تفصیلات بھی جمع کرائی جائے گی۔ سیکیورٹی اداروں نے ٹی ٹی پی کے خلاف بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کالعدم تنظیم کے لیے بھتہ لینے والے سرگرم گروہ کو گرفتار کر لیا گیا جنہوں نے دوران تفتیش بھتہ لینے کے طریقے کے حوالے سے بڑے انکشاف کیے ہیں۔ گرفتار کیے گئے تنظیم کے ارکان کافی عرصے سے مختلف طریقوں سے ٹی ٹی پی کو بھتہ خوری میں معاونت فراہم کر رہے تھے۔ ملزمان نے ٹی ٹی پی کے کمانڈر کی افغانستان میں موجودگی کی بھی تصدیق کی ہے۔ گرفتار ملزم کے دوران تفتیش انکشاف ہوا ہے۔ ٹی ٹی پی کمانڈر عبدالرزاق کو اس وقت افغانستان میں پایا گیا ہے۔ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے ہدایت دیتا تھا۔ ملزم نے انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ مزید بتایا ٹی ٹی پی کمانڈر عبدالرازق لوگوں کے گھروں اور دکانوں کی ویڈیوز منگوا کر انہیں بھتے کے لیے افغانستان سے کالز کرتا تھا اور بھتہ نہ ملنے یا تاخیر ہونے کی صورت میں جان سے مارنے یا اغوا کی دھمکیاں دیتا تھا۔ بات کریں احتساب عدالت نے 22 نیب ریفرنسز بحال کر دیے جن پر سماعت پیر کے روز ہوگی۔ نیب ترمیم کالعدم قرار دیے جانے کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے تحت احتساب عدالت راولپنڈی نے 22 نیب ریفرنسز بحال کر دیے۔ تمام ریفرنسز کے ملزمان کو نوٹس جاری کر کے 25 ستمبر کو عدالت طلب کر لیا گیا۔ دوران سماعت نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جیل سے کیس ختم کروانے والے ملزمان دوبارہ اڈیالہ جیل بھیجے جائیں گے۔ 8 کیسز کے ملزمان پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ تمام مضاربہ، جعلی ہاؤسنگ ریفرنس اور کرپشن کیسز بحال ہو گئے ہیں۔ احتساب عدالت کے جج راجہ قمر زمان نے ریفرنس ری اوپن کرنے کی درخواست منظور کر لی۔ تمام 22 ریفرنسز کے ملزمان کو طلبی نوٹس متعلقہ تھانوں میں آج ہی پہنچائے جا رہے ہیں۔ عدالت نے حکم دیا کہ طلبی نوٹس کی آج ہی ملزمان سے تعمیل کروا لی جائے۔ عدالت نے پیر 25 ستمبر کو ری اوپن کیے گئے 22 ریفرنسز کی سماعت کے موقع پر پولیس کی اضافی نفری بھی طلب کر رکھی ہے۔ اور بجلی چوری کے خلاف بات کریں کہ ملک بھر میں گزشتہ 17 روز سے بجلی چوروں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے نتیجے میں اب تک 7 ارب 88 کروڑ 90 لاکھ ریکور کر لیے گئے۔ ترجمان پاور ڈویژن کے مطابق بجلی چوروں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن میں اب تک 15,047 ایف آئی آرز کا اندراج کیا گیا جبکہ اس عرصے کے دوران 2,000 سے زائد بجلی چور گرفتار کر لیے گئے۔ اعلامیے کے مطابق لاہور کے الیکٹرک سپلائی کمپنی کے لمیٹڈ نے اب تک بجلی چوروں سے 2 ارب 15 کروڑ 52 لاکھ سے زائد ریکور کیے۔ لیسکو میں 471 بجلی چور گرفتار، 5,778 ایف آئی آرز کا اندراج کیا گیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ملتان الیکٹرک پاور کمپنی ریجن میں کارروائیوں کے دوران 1 ارب 86 کروڑ 33 لاکھ ریکور کیے گئے۔ میپکو ریجن میں 658 بجلی چور گرفتار جبکہ 3,879 ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا۔ گجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی ریجن میں کارروائیوں کے دوران 43 بجلی چور گرفتار کیے گئے۔ گیپو میں بجلی چوری کے خلاف 805 ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا۔ فیسکو میں 294 بجلی چور گرفتار، 1,472 ایف آئی آر کا اندراج جبکہ آئسکو میں 22 بجلی چور گرفتار، 176 ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق پشاور الیکٹرک پاور کمپنی میں 372 بجلی چور کو گرفتار کیا گیا، 1,790 ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا۔ حیدرآباد الیکٹرک کمپنی ہیسکو میں 31 بجلی چور گرفتار، 315 ایف آئی آر کا اندراج ہوا۔
खबर दें, लंदन में मुस्लिम लीग नून के अहम इजलास में पार्टी बयानिए और मंशूर के लिए कमेटी कायम करने का फैसला किया गया। नवाज शरीफ के तमाम CEC मेंबरान से तजवीज़ तलब कर ली गई। 7 दिन के अंदर अंदर तहरीरी तौर पर तजवीज़ नवाज शरीफ को दी जाएंगी। दीगर मामलात के बजाय सिर्फ मुआशी अहदाफ की जानिब तवज्जो मरकूज की जाएगी। कायद नून लीग और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने रहनुमाओं को हिदायत की है कि इधर उधर के बजाय नून लीग सिर्फ मुआशी अहदाफ की जानिब तवज्जो मरकूज रखे। पार्टी रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात के पेश नज़र नवाज शरीफ तमाम मामलात बराह रास्त खुद देखेंगे। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ नून लीग की जानिब से वज़ीर आज़म के मुतालिका उम्मीदवार हैं। नवाज शरीफ की सरबराही पर किसी भी सीनियर मेंबर को एतराज़ नहीं होगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कराची प्रेस क्लब का दौरा, प्रेस क्लब के अहदेदारान से मुलाकात की। सहाफ़ियों ने अपने मसाइल से निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी को आगाह किया। मीडिया से गुफ्तगू में निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखते हैं, सहाफ़ियों की बहबूद तरजीहात में है। कराची प्रेस क्लब मेरा पुराना घर है। आज़ादी इज़हार राय और आवाम के हुकूक के लिए कराची प्रेस क्लब का अहम किरदार है। सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए जो मुमकिन हुआ करेंगे, अपने इख्तियारात के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। निगरान हुकूमत एक आईनी और कानूनी हुकूमत है। आमरीत के खिलाफ कराची प्रेस क्लब एक तवाना आवाज़ है। मुल्की सियासत में भी कराची प्रेस क्लब तारीख़ी अहमियत का हामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद और बाइख्तियार इदारा है। इंतखाबात कुछ लोगों के जहनों में है, माजी की वजह से कुछ लोग उलझन में हैं। पहले 90 दिन में इलेक्शन का वादा किया गया और फिर 11 साल हुकूमत की गई। आइन में लिखा है मुल्क मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे, इलेक्शन की हतमी तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। जबकि मुर्तज़ा सोलंकी का कहना था नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर आज़म रहे, नवाज शरीफ जेल की दीवारें तोड़कर नहीं गए, उस वक्त की हुकूमत और अदालत की इजाजत से गए। नवाज शरीफ केस से वापस आएंगे, इसका जवाब निगरान हुकूमत ने नहीं देना, इसका जवाब नवाज शरीफ ने खुद या इस मुल्क के आइन ने देना है। और नेपरा ने महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर बिजली गिरा दी। नेपरा की जानिब से बिजली 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। बिजली सहमाई एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक होगा। बिजली की कीमतों में इजाफा का इतलाक तमाम सार्फिन पर होगा। नेपरा की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला हुकूमत को भिजवा दिया गया। पीपल्स पार्टी ने टिकट के इजरा के लिए पार्लिमानी बोर्ड का ऐलान कर दिया है। वस्ती पंजाब के पार्लिमानी बोर्ड में 17, खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड में 14 अरकान शामिल हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध के लिए 30 और बलूचिस्तान के लिए 8 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया। वस्ती पंजाब के 17 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड में राजा परवेज अशरफ, राना फारूक सईद खान, सईद हसन मुर्तजा, शहजाद सईद चीमा, आमिर फिदा पराचा, औरंगजेब एजबरकी शामिल, बेगम हुसैन, जबकि चौधरी असलम गिल, चौधरी मंजूर अहमद भी 17 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड में शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 14 अरकान में सैयद मोहम्मद अली शाह बाचा, शुजा खान, अमजद खान आफरीदी, अनवर सैफुल्ला खान, आजम खान आफरीदी, बैरिस्टर मसूद कौसर और दीगर शामिल हैं। बलूचिस्तान के लिए 8 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड में मीर चंगेज खान जमाली, रोजी खान काकड़, सरबुलंद खान जोगेजई, जबकि हाजी अली मदद जतक, मीर बाज मोहम्मद खान खेतरान, मोहम्मद सादिक इमरानी, साबर बलोच और गजाला गोला शामिल हैं। सिंध के लिए 30 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड में निसार अहमद खोड़ो, सैयद वकार मेहदी, एजाज धामिरा, अब्दुल लतीफ अंसारी, अब्दुल कादिर पटेल, फारूक एस्टाइक, हरी राम केशवरी लाल, इस्लामुद्दीन शेख, जाम मेहताब दाहड़ शामिल हैं। जबकि मखदूम जमीलुज़्ज़मा, मंजूर वसान, मौला बख्श चांडियो, मियां रज़ा रब्बानी, मुराद अली शाह, सईद गनी, शाजिया मरी, शीरी रहमान, खुर्शीद नवीद कमर, कायम अली शाह, ताज हैदर, शगुफ्ता जुमानी और सिंध के ये 30 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड में लोग शामिल हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साफरा केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त से जमानत समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें चेयरमैन PTI की जमानत का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। चेयरमैन PTI की साफरा केस में दरखास्त जमानत पर समाअत पीर को होगी, जिससे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक समाअत करेंगे। अदालत ने केस के दलाइल के लिए FIA को नोटिस जारी कर रखा है।
निगरां वजीर आजम अनवर उल हक काकड़ ने कहा है कि किसी भी सियासी जमात को सियासी अमल से नहीं रोका जा रहा, मगर 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरां वजीर आजम अनवर उल हक काकड़ ने कहा, कोशिश है इलेक्शन तक मुल्क में कुछ निष्कारी हो चुकी हो, गैर मुल्की सरमायाकारी आ चुकी हो, ताकि नई हुकूमत को अपना मंशूर आगे बढ़ाने में आसानी हो। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी करेंसी ट्रेड के खिलाफ क्रैकडाउन को IMF ने सराहा है, ये कार्रवाई जारी रखेंगे। निगरां वजीर आजम का कहना था कि चीनी माफिया और गंदम माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके कीमतों में मसनूई इजाफा रोक लिया है, डॉलर रेट भी नीचे आने लगा। अनवर उल हक काकड़ ने मजीद कहा, इंतखाबात की तारीख का जल्द ऐलान होगा, किसी भी सियासी जमातों को सियासी अमल से नहीं रोका जा रहा, मगर 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। हरदीप सिंह केस पर निगरां वजीर आजम का कहना था कि कनाडा में सिख रहनुमा का बेईमाना कत्ल किया गया। कनाडा में भारतीय इक़दामात की वजह से मगरबी दुनिया को झटका लगा। अब हिंदुस्तान की रियासत पर संजीदा सवालात उठाए जा रहे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान ने आम इंतखाबात 28 जनवरी को होने की पेशगोई की है। एक बयान में मंजूर वसान ने कहा है कि आम इंतखाबात में PPO नून लीग में मुकाबला सख्त होगा। PPO और नून लीग में मुकाबला सख्त होगा, जबकि सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ तमाम जमातों का इत्तेहाद बनेगा। उन्होंने कहा कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का सिंध का सफाया हो चुका है और सिंध में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। PP रहनुमा का कहना है कि दीगर सूबों में PP ज्यादा सीटें लेगी। एहतसाब मखसूस लोगों का नहीं, सबका होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पश्तून कल्चर पाकिस्तान के सकाफती गुलदस्ते में खूबसूरत फूल है, हमारा कौमी विरसा भी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पश्तून सकाफत के दिन पैगाम जारी किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम समेत पूरी कौम को यौम सकाफत पश्तून को मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पश्तून सकाफत की असास मोहब्बत, मेहमान नवाजी और फितरत से प्यार है। पश्तून अवाम तारीखी तौर पर बहादुर और हुर्रियत पसंद रहे। मुल्क का सकाफती तनू हमारी मौशती खूबसूरती और पहचान है, हमें इस पर नाज है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा, पीपल्स पार्टी मुल्क की तमाम सकाफतों को मसावी अहमियत की और दर्जा देने पर यकीन रखती है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से निगरान वफाकी वजीर कॉमर्स, इंडस्ट्री और टेक्सटाइल डॉक्टर गौहर एजाज की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई है। निगरान वफाकी वजीर गवर्नर सिंध की दावत पर स्टेक होल्डर से मुलाकात करने के लिए कराची आए हैं। मुलाकात में सनती पैदावार और इजाफा, जबकि शहर कायद में खुसूसन सनतों को बिजली और गैस की मुसलसल फराहमी के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि बिजली की लोड शेडिंग और निर्खों में इजाफे से आवाम शहरी के साथ साथ सनतकार यकसा तौर पर परेशान है। मुल्क की मौशी तरक्की का इन्हिसार सनती फालियत पर है। पाकिस्तान का मौशी हब कराची अगर तरक्की करेगा तो पूरा मुल्क तरक्की करेगा। निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज ने कहा, निगरान हुकूमत सनतकारों को रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दामात भी कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की नुमाइंदा साइमा सलीम ने भारत को भरपूर जवाब देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का ना कभी था ना कभी होगा। आज़ादी की तहरीक दहशतगर्दी नहीं। पाकिस्तानी मिशन की नुमाइंदा साइमा सलीम ने कहा कि भारत ने कश्मीर पर जारहाना कब्जा कर रखा है, जबकि उनका कहना था कि भारतीय मुजालिम और पाबंदियों के बावजूद कश्मीरियों के दिल पर पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। कौंसलर साइमा सलीम ने कहा कि भारत के गासिबाना कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की मुज़ाहमत जायज़ और कानूनी है। उनका कहना था कि जंगी जुराइम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर भारत जवाबदेह है। भारत दहशतगर्दी का शिकार नहीं बल्कि उसका स्पॉन्सर है। भारत पाकिस्तान समेत खत्ते के ममालिक में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। भारतीय दहशतगर्दी की फ्रेंचाइज अब आलमी हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों समेत अक़लियतों पर मुजालिम ढाए जा रहे हैं। रवां साल के इब्तिदाई 8 माह में सिर्फ मसीहों पर 525 हमले किए गए हैं। कौंसलर साइमा सलीम का मजीद कहना था कि दुनिया भारत को स्ट्रैटेजिक वजूहात पर झूठ देना बंद करे। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कैनेडियन शहरी के कत्ल में मुलव्वस भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया है खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात में कनाडा से ताउन करें। एंटोनी ब्लिंकन ने अपने एक बयान में कहा कि भारत ये यकीनी बनाए कि वाकई में मुलव्वस अफराद का एहतसाब किया जाए। ब्लिंकन का कहना था कि वो इस मामले पर भारत और कनाडा के करीबी राब्ते में हैं। ये अहम है कि तहकीकात मुकम्मल हो और उनका नतीजा निकले। उन्होंने कहा, अमरीका बैनुल-अक़वामी जबर को बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेता है। यह आलमी निज़ाम के लिए अहम है कि अगर कोई मुल्क में बैनुल-अक़वामी जबर में मुलव्वस होना चाहता हो तो वैसा ना करे। हाल ही में रिश्ते अज़वाज में मुंसलिक होने वाली कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी शाहीन शाह अफरीदी ने शादी की तमाम तकरीबात से फारिग होकर पहला पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया।
सोशल मीडिया पर शादी के मुख्तलिफ तकरीबात से दो खूबसूरत तस्वीर शेयर की और हाल दिल बयान किया। फास्ट बॉलर की जानिब से शेयर की गई इन दो तस्वीर में से एक तस्वीर शादी के मौके पर ली गई है, जिनमें उनके हमरा साबिक कप्तान और उनके ससुर शाहिद आफरीदी मौजूद हैं। तस्वीर में दोनों की दिलकशी दीदनी है, जबकि इनकी दूसरी तस्वीर उनकी अहलिया अंशा आफरीदी के हमरा है, जो वलीमे की तकरीब में बनवाई गई है। उनके खूबसूरत और बामायनी तस्वीर उनके साथ शाहीन शाह आफरीदी ने पैगाम भी पोस्ट किया है और शादी के मौके पर आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और तशरीफ आवरी के लिए भी उन्होंने शुक्रिया कहा और लिखा कि आप सबकी नेक ख्वाहिशात और तमन्नाओं का शुक्रिया। ये किसी खास इंसान के साथ प्यार, मोहब्बत और खुशियों की शुरुआत है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज़ नेटवर्क।